Turn your Bible to Genesis chapter 1 verse 1. आइए इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 में हम खोलेंगे। In the beginning. और आदि में। Today we are going to talk about in the beginning. और आज हम शुरुआत के बारे में हम बात करेंगे। What does the Bible says? बाइबल हमें क्या कहती है? In the book of Genesis chapter 1, और उत्पत्ति के अध्याय 1 में verse number 1, वचन 1 में, someone read loud and clear for me. और कोई बहुत जोर से आप पढ़िए इस समय। Genesis chapter 1 verse 1. उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1। In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और संसार की सृष्टि, पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया। So आदि में, So in the beginning, अगर if anybody has a old Hindi Bible, अगर किसी के पास पुराना हिंदी बाइबल है, it doesn't say आकाश, ये नहीं कहता कि आकाश के, it says स्वर्ग। और ये हमें बताते हैं कि स्वर्ग के लिखा In the है। beginning, और आदि में God created परमेश्वर ने the heaven स्वर्ग को and the earth. और पृथ्वी को। Amen. Amen। So a lot of people have confusion. अब बहुत से लोगों के पास कंफ्यूजन है, And they have a problem and they say, how can God come from where? और वो लोग आज समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर कहाँ से आ सकता है। And people who go to universities think that they are too smart. और जो लोग यूनिवर्सिटी को जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। They go to school and college, they think they are too smart. और लोग स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, वो लोग समझते हैं कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। School and college has only one purpose. और स्कूल और कॉलेज का एक ही लक्ष्य है, To learn how to read and write. और बताने के लिए केवल कैसे रीड करना है, कैसे लिखना है, How to speak. किस प्रकार से बात करना है, And get a job. और किस प्रकार से काम मिलना है। That is all the purpose of school, college and और university. स्कूल का, यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का यही उद्देश्य है। You should not take school, college and university too seriously. और आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह को आपको सीरियस में नहीं लेना है, Because too many people go to school, college and university and lose their faith in the truth. क्योंकि बहुत से लोग कॉलेज को जाकर, स्कूल को जाकर, यूनिवर्सिटी को जाकर उन लोग अपना विश्वास को खो देते हैं। And they go as a man. और एक इंसान जैसे वो लोग जाते हैं, And after the university they come out as a monkey. और यूनिवर्सिटी के बाद उन लोग एक बंदर जैसे बन के आते हैं। They go to the university believing that God created man. उन लोग यूनिवर्सिटी को जाते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। After 3 years of university they began to say man came from monkey. लेकिन 3 साल बाद उन लोग क्या कहेंगे कि मनुष्य जो है बंदर से आया। And these things are programmed in the television on National Geography and Animal Planet and all those things. What's going on? और दूरदर्शन वगैरह Discovery. में, बहुत से चैनल वगैरह में इन सब चीजों को प्रोग्राम किया गया है। And that's what you hear all the time. Millions and billions and billions of years ago. और आप हमेशा सुनेंगे कि लाखों लाखों करोड़ों समय पहले। And then people are all they're all listening and watching. और लोग बहुत अचंभित से उन लोग सुनते हैं। You were not even born thousands of years और ago. 1000 साल पहले आप उस समय जन्म भी नहीं हुआ। How do you even know about billions and billions of years कैसे ago? आपको पता चला कि करोड़ों साल पहले के Oh, बाद? we are learning about the Stone Age. और हम उन समयों का हम स्टडी कर रहे हैं। उस समय We got this bone. This bone was billions and billions of years हम ago. देखते हैं, ये जो हड्डी है ये बहुत सालों का पहले का है। These fellows don't even know what happening in their wife's brain and their husband's brain, but they know about the bone millions of years ago. ये व्यक्ति को जो है अपने पत्नी के बारे में ही उसको पता नहीं, लेकिन उसको सालों, बहुत साल पहले की बात उसको पता है। And they almost like, billions and billions of years ago, this bone was, this animal was existing on this earth. और उन लोग कहेंगे बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले ये जो जानवर था उस समय था। उस समय We really don't understand what's happening, what is in the brain of the mind of the person sitting next to us. और हमें पता नहीं कि जो आपके बाजू में जो बैठा हुआ है उसके मन में क्या चल रहा है, आपको नहीं मालूम इस समय। But foolishly we tend to believe all these things that's coming on the television. लेकिन मूर्खता से हम क्या करते हैं, जो दूरदर्शन में आते हैं उसको हम विश्वास कर जाते हैं। People today don't want to believe what God said in the Bible. लोग आज विश्वास नहीं कर सकते, बाइबल हमें क्या बताते उसको विश्वास नहीं करना चाहते हैं। But they are believing what a sinful man speaking on the television.
television. लेकिन पापी लोग क्या दूरदर्शन में बता रहे उसको उन लोग विश्वास करना चाहते हैं। They say, no, that's not possible. There can be a God. उन लोग कहते हैं कि नहीं एक संभव नहीं परमेश्वर होना। Oh, no, man came from monkey. नहीं मनुष्य जो है बंदर से आया है। Billions of years ago, there was a small little matter, और बहुत साल पहले एक छोटा सा कुछ तो बिंदु था, and that matter exploded, और वो जो बिंदु है वो पूरा फट गया, and it became rock, and it became stone, and it became trees, and boom, there came a man. और चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, और पेड़ पौधा हो गया, और अचानक से मनुष्य बन गया। And if you ask them, where did this matter come from? और अगर आप पूछेंगे ये जो बिंदु है कहाँ से आया है, They will start scratching their head like a monkey. और उन लोग बंदर जैसे उन लोग अपने सिर को खुजाएंगे। See, when you talk too much about monkey, that's what you become. जब ज्यादा बंदर के बारे में बात करेंगे वही आप बनेंगे। And then people start worshipping the monkey. और लोग शुरुआत करते हैं बंदर का आराधना करना, And that's the work of the devil. और वो शैतान का काम है। But God is saying, you were not there, I was there. लेकिन प्रभु ने कह रहे आप वहां पर नहीं था लेकिन मैं था वहां पर। Imagine many a time when the conversation took place. देखो बहुत सारे समय जब बातचीत जब होते हैं, And people try to tell you something about something that they were not there at that और time. लोग बात करने के लिए शुरुआत करेंगे जहां पर उन लोग था ही नहीं उस समय की बात But उन लोग you करेंगे। were there in that place at that time. लेकिन वो जगह में आप उस समय थे। And when they were trying to tell you something, लेकिन जब उन लोग आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, but you were there at that moment, लेकिन वो समय में आप था वहां पर मौजूद, you knew exactly what happened. और आपको पता था कि वहां पर क्या हुआ है। How did you reply? उस समय आप कैसे जवाब देंगे? You will say, don't tell me all that thing. I was there when that happened. उस समय आप क्या कहेंगे? मुझे मत बताओ क्या हुआ, लेकिन उस समय मैं था वहां पर। Am I right? क्या मैं सही हूँ? That is how we reply. और वही उसी प्रकार से हम जवाब देंगे। But then we sit in front of the television with our popcorn, लेकिन हम दूरदर्शन के आगे हम बैठते हैं अपने पॉपकॉर्न को लेकर, with our chips, हमारे चिप्स को लेकर, and with our tea and our coke. और हमारे चाय और पानी के द्वारा। And then the television fellow in the television says, और टेलीविजन के लोग कहेंगे billions of years ago, बहुत से हजारों साल पहले this happened. और ये हुआ है, And then people tend to believe that. और लोग विश्वास करने लगते हैं। No. God says, नहीं प्रभु ने कहा you were not there. आप वहां पर नहीं थे, I was there. मैं वहां पर था, I did it. मैंने किया। And so you need to believe what I did and I say. तो जो मैं कुछ कहता हूँ, जो मैंने किया उसको तुम्हें विश्वास करना है। And so we don't believe what happened billions of years तो ago. हम विश्वास देंगे नहीं हजारों साल पहले क्या हुआ है। No one existed 7,000 years ago. और 7,000 साल पहले कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। If anybody existed 7,000 years ago, और 7,000 पहले अगर कोई वहां पर अस्तित्व था, it was God. और वो था परमेश्वर, It was a triune God. और ये हमारा परमेश्वर था। And it was the angels that God had और created. उस समय स्वर्गदूत था जो परमेश्वर ने बनाया, There was no man and woman. और कोई भी मनुष्य नहीं था उस समय, There was no other human beings. और कोई भी अलग दूसरा मनुष्य नहीं था वहां But पर, God was there. लेकिन प्रभु वहां पर था। And God says, और प्रभु ने कहा just 7,000 years ago, 7,000 साल पहले, I started creating man. और मैंने मनुष्य को बनाना शुरू किया, And I started creating all these things in the earth. और ये संसार में पूरे चीजों को मैंने बनाना शुरू किया। In the beginning, और शुरुआत में, when the Bible says in the beginning, बाइबल बताती है आदि में, it doesn't say that when God began. इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर का शुरुआत हुआ है, But it says about when God began to create लेकिन ये बताते हैं कि जब परमेश्वर ने शुरुआत किया बनाने के लिए the heaven and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी को, God always existed. परमेश्वर का अस्तित्व हमेशा से था। You see, we don't make God हम प्रभु को नहीं बनाते because God made us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। We don't make an idol हम मूर्ति नहीं बनाते because we cannot make God. क्योंकि हम प्रभु को नहीं बना सकते। But men today are making God लेकिन आज बहुत सारे मनुष्य लोग भगवान को बनाते हैं because they don't know the true living God. क्योंकि उन लोगों को सच्चा परमेश्वर को नहीं पता है, And so they don't know and they don't understand the true living उन लोग God. समझता नहीं जो जीवित परमेश्वर के बारे में। So they make a monkey as God. तो उन लोग बंदर को अपना भगवान जैसा बनाते They हैं, take a stone as लोग God. पत्थर को अपना भगवान जैसे They बनाते take a हैं, tree as God. और पेड़ को उन लोग अपना भगवान जैसा बनाते हैं। That is what men can all think about. और वही मनुष्य सोच पाते हैं आजकल, But men don't know what God looks like. लेकिन मनुष्य को नहीं पता कि प्रभु कैसा दिखता है। God says, I made this universe. प्रभु ने कहा कि ये पूरे धरती को मैंने बनाया I है, am bigger than everything. मैं सबसे भी ज्यादा अद्भुत बड़ा हूँ, Bigger than the tree and bigger than the rock and bigger than the earth. और इस संसार से, चट्टान से, पेड़ पौधों से मैं ज्यादा बड़ा हूँ। Someone, a scientist said you can put billions and trillions of the size of this earth inside the sun. और किसी विज्ञान ने कहा कि तुम बहुत से हजारों अधिक तुम आकार के तुम यह पृथ्वी को सूरज में तुम डाल सकते हो। That sun is so big, और जो सूरज से बहुत ही बड़ा है, is billion times bigger than the earth. और इस संसार से भी कहीं ज्यादा गुना बड़ा है। And yet standing here we can look at the sun and look so small. लेकिन यहाँ पे खड़े होकर हम सूरज को वहां देखते हैं बहुत ही छोटा है।
And God created that sun. और परमेश्वर ने उस सूरज को बनाया है, And God is bigger than the sun. और परमेश्वर सूरज से भी ज्यादा बड़ा है। But man looks at the sun लेकिन मनुष्य सूरज को देखता है, and he says, sun gives the light और हम देखते हैं कि जो सूरज से हमें रोशनी देता है and sun gives the heat, और हमें हीट को देता है, and they begin to worship the sun. और लोग शुरुआत करते हैं सूरज को आराधना करने के The लिए। problem is people are not asking questions today. ये समस्या ये है कि लोग आज प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, The question is, who made the sun? और प्रश्न ये पूछना है कि सूरज को किसने बनाया। And the scientists are not able to give the answer विज्ञान लोग ये जवाब को नहीं दे पाते हैं, because they were not there when the sun was created. जब सूरज को बनाया गया तो उन लोग तभी विज्ञान उस समय नहीं था। And God says, और प्रभु कहता है, I made the sun. मैंने सूरज को बनाया। You were not आप there, उस समय नहीं था, but I was there. लेकिन मैं वहां पर था, And I made the sun. और मैंने सूरज को बनाया। And you want to know how I made the sun? क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने किस प्रकार से सूरज को बनाया? God said, I just said it. प्रभु ने कहा कि मैंने केवल बोला, I spoke and the sun existed. मैंने कहा और सूरज का अस्तित्व उस समय हो गया। In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि की, God is the one who created everything. और परमेश्वर ही वो है जो सब कुछ बनाया है। And so as Christians, we should ignore and we should reject everything that is called by man as God. और हमें मनुष्य होने के नाते हमें सब कुछ इनकार करना चाहिए जो मनुष्य लोग चीजों को भगवान बनाते हैं। God is the beginning. और परमेश्वर ही शुरुआत है। Jesus said, I'm the beginning and the end. और यीशु कहता है कि मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। Jesus said, I'm the Alpha and the Omega. यीशु ने कहा कि मैं अल्फा हूँ और मैं ओमेगा And हूँ। we need to obey what God says, dear friend. हमें आज्ञा को मानना चाहिए जो कि कुछ परमेश्वर ने कहा है, Not what man says. जो मनुष्य ने कहा वो नहीं। We should be training and educating our children in the Word of God more than in the universities. हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए बाइबल के बारे में। Education begins at the house. लेकिन जो शिक्षाएं हैं उन लोग शुरुआत हो जाते हैं वहां पर। Education begins at home. और जो शिक्षाएं हैं वो घर में शुरुआत होते हैं। Education begins in the church. और शिक्षाएं जो है कलीसिया में शुरुआत होते हैं। Education does not begin in the school and college and universities. और जो शिक्षा है वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। And it is our duty to train our children to grow to believe the Word of God. और ये हमारा कर्तव्य है अपने बच्चों को सिखाना ताकि उन लोग परमेश्वर के वचन में बढ़े And to believe the God of the Bible. और बाइबल की जो परमेश्वर इसके ऊपर विश्वास करने के And लिए not only believe and receive the God of the Bible, केवल विश्वास और ग्रहण नहीं, but boldly proclaim the God of the Bible. लेकिन पूरे साहस के साथ जो बाइबल की जो परमेश्वर को बताने के लिए। And education begins in the house of और God. जो शिक्षा है परमेश्वर की भवन में शुरुआत होती And है। that's why we need to bring our children to the house of God. इसलिए हमारे बच्चों को हमें भवन को लेके आना चाहिए। As last Sunday as we studied from the Word of God, जिस प्रकार से हमने पिछले रविवार को हमने स्टडी किया था, how to raise up godly children in this present world. और आज के समय में हमें कैसे बच्चों को हमें सिखाना है, Not by sending our children, हमारे बच्चों को भेजने के द्वारा but नहीं, by bringing our children to the house of God. लेकिन हमारे बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेके आने के द्वारा। If we don't come with the children to the house of अगर God, हम हमारे बच्चों के साथ कलीसिया को नहीं आते there हैं, will be a day that you will be crying and weeping and gnashing your teeth. और ऐसा दिन आएंगे जो अपने दांत को पीसेंगे, आप रोएंगे उस समय, Where you will be crying that you did not set a good example to your children. आप उस समय रोएंगे कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण को नहीं रखा है। And you will see your children going one way and you going another way. और आप देखेंगे आपके बच्चे लोग कुछ और मार्ग में चल रहे हैं और आप कुछ और मार्ग में चल रहे हैं। And so as parents, you need to be sitting with your children at home and teaching them the Word of God and praying along with तो them. आपको एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के साथ बैठकर आपको परमेश्वर के वचन को सिखाना है और प्रार्थना करना है उन लोगों के And साथ। as parents, it is your duty to come along with your children to the house of और एक God. माँ बाप होने के नाते आपको अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। When we train our children in the Word of God now, when they grow old, they will not depart from it. इस समय हम जब अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाएंगे, उन लोग बड़े होने के बाद उन लोग परमेश्वर के वचन से उन लोग त्यागेंगे नहीं है। We have to do this because God is teaching us to do it. इसको हमें करना है क्योंकि परमेश्वर हमें यह सिखा रहा था कि हम अपने बच्चों को सिखा We सकें। need to teach our children the creation, हमें अपने बच्चों को सृष्टि के बारे में सिखाना है that God created कि everything. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। God is the creator. परमेश्वर सृष्टि करता है God is the sustainer and the savior. और परमेश्वर हमारा रखवाला और हमारा उद्धार करता है। Everybody should memorize that first verse of the Bible. और सभी लोग ये वचन को याद करना है। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? In Genesis chapter 1 verse 1. उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 में। It is very easy and simple. और ये सबसे सरल है और इजी है। And today when you go home, जब आज घर को जाएंगे you can go home
with this verse in your heart and mind. और ये वचन के साथ आप अपने घर को जा सकते हैं। In the beginning, आदि में God created परमेश्वर ने the heaven and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। Let us repeat after me. आइए इस समय हम सभी लोग कहेंगे एक साथ। In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, In the beginning. God created the heaven and the earth. आइए इस समय हम हिंदी में कहेंगे आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। One more time. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। So remember, in the beginning, even before the beginning, God was there. आपको ये समझना है आदि से भी पहले ही परमेश्वर का मौजूद था वहां पर। And God created everything. और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। And God knows everything. और परमेश्वर को सब कुछ पता है। The people on the TV does not know. They are telling lies to you and to your children. और टीवी के लोगों को पता नहीं और आपको उन लोग झूठ कह रहे हैं, आपके बच्चों को झूठ कह रहे हैं। Every mother and father should keep an eye and see what your children are watching. और हर एक माँ बाप जो है अपने नजर को अपने बच्चों के ऊपर रखना, उन लोग क्या देख रहे हैं टीवी में। If you see something wrong that has been programmed in the TV, you need to switch the channel and allow your children to watch something else. अगर टीवी में कुछ और गलत चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अलग चैनल में रखकर आपको अपने बच्चों को देखने के लिए वहां पर रखना है। There was a mistake once happened in our home. और हमारे घर में ऐसा मिस्टेक हुआ। And our kids were watching something on the YouTube. और यूट्यूब में हमारे बच्चे लोग कुछ देख रहे थे उस समय। And normally we will choose what has to be watched. और हम हमेशा क्या करते हैं, हम चूज करके रखते हैं पहले से क्या देखना है। But then now what happens is suddenly in the middle of that thing the advertisement comes. और वहां पर क्या आ गया, वीडियो के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ गया वहां पर। So we were busy with our work. और हम हमारे काम से हम बिजी थे उस समय। And while our kids were watching, जब हमारे बच्चे लोग देख रहे थे उस समय, in that program it said, well, you know, the dinosaurs and all these things just came by themselves. और वहां पर कहा गया था कि जो डायनासोर्स वगैरह है वो अपने आप से आ गया था। It all came from the fossils of the earth. और ये जो पृथ्वी से और ये हवा से अचानक से उन लोग आ गया था। So one day when my wife was teaching my children about the Bible, और जब एक दिन मेरी पत्नी जो है वो सिखा रहे थे अपने बच्चों को बाइबल के बारे में, one of my son told my wife, और बच्चों में से एक बच्चा ने कहा, no mommy, God did not create dinosaur. नहीं मम्मी, परमेश्वर ने डायनासोर को क्रिएट नहीं किया। How can God do it? There's no God. कैसे परमेश्वर कर सकता है, प्रभु ही नहीं है। And it was like this big shock. और ये हमारे लिए बहुत ही एक अचंभित था। Just an advertisement on the YouTube और वो एडवर्टाइजमेंट जो है यूट्यूब में उसके वजह से got into the brain of one of my son. और बच्चों में से एक जन के पास वो अंदर चला गया दिमाग में। And we took a drastic step of what they are watching. और हमने उस समय से ध्यान रखा कि उन लोग क्या देखते हैं। It is very serious, dear friend. और ये बहुत ही सीरियस है मेरे प्रियो। And my kids are very sharp. They'll catch like that. और मेरे बच्चे लोग बहुत ही तेज हैं, उन लोग इस प्रकार से उन लोग पकड़ते हैं सब कुछ। And as parents, it is our duty to supervise what our kids are watching. और एक माँ बाप होने के नाते हमें सब कुछ ध्यान रखना कि बच्चे लोग क्या देख रहे हैं। Because we think, oh, it's a kids program. और हम सोचते हैं कि ये बच्चे लोग का प्रोग्राम है। But then they are programming our children to disbelieve God and to believe in evolution. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन के ऊपर विश्वास करने के लिए और परमेश्वर के विश्वास से उन लोग हटाने के लिए उन लोग इस समय प्रोग्राम कर रहे हैं। And they are doing it through advertisement and through YouTube and through television. और यूट्यूब के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा और एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उन लोग ये सब कर रहे हैं इस समय। Parents, we should supervise over our children's television program. और माँ बाप लोग क्या करना है, अपने बच्चों को ध्यान रखना है और उन लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। Nor you should be watching in front of your children something that is not to be watched. और जो नहीं देखना है आपको अपने बच्चों के सामने भी नहीं देखना है। So remember, God created everything. तो याद रखो परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया। In the beginning, God created. आदि में परमेश्वर ने बनाया। Secondly, we see in John chapter 1 verse 1. और दूसरे वचन में हम देखेंगे इस समय यूहन्ना लिखे सुसमाचार 1 वचन, The Bible says, बाइबल हमें बताती है, in the beginning was the Word, आदि में वचन था and the Word was with और God, वचन परमेश्वर के साथ था and the Word was God. और वचन परमेश्वर था। Now you see, the Bible begins in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God. और बाइबल शुरुआत करती है कि ये कहते हैं कि आदि में परमेश्वर था।
And John chapter 1 verse number 1 says, in the beginning was the Word. और वचन में यहाँ पर लिखा है यूहन्ना में कि आदि में वचन था, And it says, and the Word was with और God. लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था, Then the Bible says, and the Word was और God. लिखा है कि जो वचन परमेश्वर था, So that Word is God. तो वो जो वचन है वो परमेश्वर है। And the Bible says the Lord Jesus Christ is the Word of और God. बाइबल बताते हैं कि जो वचन है वो परमेश्वर प्रभु है। Colossians chapter 1 verse number 15 says that Jesus Christ is the creator of this world and heaven. कुलुस्या 1:15 में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो सृष्टि करता है पूरे धरती का। John chapter 1 says all things were created by the Lord Jesus और Christ. यूहन्ना 1 में लिखा है कि सब कुछ यीशु के द्वारा सृष्टि किया गया है। And the Bible says in Genesis chapter 1, in the beginning God created. और लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। And what we understand from comparing scripture with जो scripture, हम स्क्रिप्चर में हम कंपेयर करते हैं उसमें हम क्या समझते we हैं? come to understand that Jesus Christ is the true living God who created everything. हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है जिन्होंने सब कुछ बनाया है। We are not worshipping an unknown God this morning. अनजान भगवान की हम आराधना करने We are not worshipping a devil this morning. हम शैतान की आराधना नहीं कर रहे हैं, We are not worshipping some evil God this morning. और एक दुष्ट भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं इस We समय। are worshipping the one true living हम God. एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, And He spoke and everything was और created. उसने बस कहा और सब कुछ हो गया। And the true living God is wanting us to know that this word that we have in our lap this morning is the pure word of God. और सच्चा परमेश्वर हमें चाहते थे कि हम जाने कि जो हमारे पास बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है। As Jesus is perfect and pure, जिस प्रकार से यीशु मसीह शुद्ध है वो सिद्ध है, His word is perfect and pure. उसके जो वचन है वो सिद्ध है। And we should be studying and reading and meditating and loving the word of God. और हमें वचन को ध्यान करना है, अध्ययन करना है, परमेश्वर के वचन को प्यार करना है। God spoke and everything came into existence. परमेश्वर ने बस बोला और सब कुछ आ गया। There is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, The word of God is a lamp unto our feet और परमेश्वर के वचन हमारे पाँव के लिए दिया है and a light unto our path. और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है, The word of God is a bread for our daily और life. हमारे हर दिन जीवन के लिए परमेश्वर के वचन रोटी है। Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचे लेकिन परमेश्वर के हर एक जो मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। My dear friend, as much as every day your physical bread and your curry is important for you, the word of God should be more important to your spiritual मेरे life. प्रिय, जिस प्रकार से आपको शरीर के लिए जो सब्जी वगैरह खाना वगैरह जरूरी है उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में हमें और भी ज्यादा अधिक जरूरी है If वचन। you don't eat well, you will die of malnutrition. अगर आप सही से नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे, And spiritually, if you don't eat the word of God, you will spiritually be malnourished. और आप क्या हो जाएंगे अगर आप आत्मिक जीवन में अगर आप खिलाएंगे नहीं पिलाएंगे आपका आत्मिक जीवन रुखा सुखा हो In जाएगा। the beginning was the word. और आदि में वचन था, Your life should begin with the word, dear और friend. आपका वचन से शुरुआत होना चाहिए मेरे Your प्रियो, life should begin with the word of और God. आपके जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा शुरुआत होना चाहिए। Whatever you do, the word of God should have a preeminence in your life every day. जो कुछ भी आप करें परमेश्वर का वचन सबसे पहला स्थान होना चाहिए आपके जीवन में। There is power in the word of God. सामर्थ है परमेश्वर के वचन It में, is through the word of God that we are sanctified daily. और ये वचन के अनुसार हम हर दिन शुद्ध होते हैं, It is through the word of God that we are cleansed according to Ephesians और 5:25. वचन के अनुसार हम हर दिन शुद्ध होते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। It is through the word of God that we are sanctified according to John 17:17. और यूहन्ना 17 के अनुसार हम हर दिन शुद्ध होते हैं। In the beginning was the word. और आदि में वचन था, Your life should begin with the word. और आपकी जो जीवन है वो वचन के द्वारा शुरुआत होना The word चाहिए, of God. परमेश्वर का You वचन। need to thank the word of God. आपको प्रभु के वचन को धन्यवाद देना The चाहिए, Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को। The Bible says the name of the Lord Jesus is the word of God. और वचन बताते हैं कि यीशु मसीह का जो नाम है वो वचन है। We read that in Revelation 19. हम वो प्रकाशित वाक्य वचन 19 में हम देखते His हैं, name is the word. और उसका नाम जो है वचन है, He is the word. और वो ही वचन है, And with the word he created. और वचन के द्वारा उसने सब कुछ बनाया। Oh dear friends, scripture should take a preeminent in our lives. ये मेरे प्रिय जो वचन है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रधान होना चाहिए। You may say, Pastor, but I cannot read it. आप कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ But पास्टर you जी, can hear it. लेकिन आप सुन सकते हैं। There are times that I may not have time to sit and read. और ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जब मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं और पढ़ने के लिए समय नहीं है, And so what I will do is while I'm traveling, तो मैं क्या करता हूँ जब मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, I will put the scripture reading on my card. और मैं क्या करता हूँ मेरे मोबाइल में स्क्रिप्चर को रीड करवाता हूँ, And when I click a button,
the man will read for me. और जब मैं बटन को क्लिक करता हूँ, जो एक वहाँ पर जो होता है वो रीड करता है उस And समय। by the time I reach to that destination, और जहाँ पर मुझे पहुँचना, वहाँ जब मैं पहुँचता हूँ, I have finished so many books of the Bible. और बाइबल के बहुत सारे किताबों को मैं फिनिश करता हूँ। And God increases our faith when we hear the word of जब God. हम वचन सुनते हैं, हमारा विश्वास उस समय बढ़ जाता है। My dear friend, we need to hear and read and understand the word of God. मेरे प्रिय, हमें सुनना है, पढ़ना है और हमें समझना है परमेश्वर के वचन को। We will understand the truth and we will get away from many problems if our life is saturated in the word of अगर God. हमारा जीवन वचन में है तो हम बहुत सारे समस्याओं से, बहुत सारे प्रश्नों से हम दूर रहेंगे। Today a lot of people running after miracle and not after the word of आज God. बहुत सारे लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। In the beginning was the word. आदि में वचन था, And God's people should begin their life with the और word. परमेश्वर के लोग वचन के द्वारा उन लोगों को शुरुआत करना चाहिए। And we need to begin our life in this manner. और हमारे जीवन को हमें वचन के अनुसार हमें शुरुआत करना चाहिए। You know, God is speaking about our foundation. परमेश्वर हमारे बुनियाद के बारे में यहाँ पर बात कर Look रहा at है। Hebrews chapter 1, इस समय हम इब्रानियों के पुस्तक में हम देखेंगे, verse number 10. वचन अध्याय 1 वचन 10 में हम देखेंगे। Hebrews chapter 1, verse number 10. इब्रानियों अध्याय 1 वचन 10 में हम देखेंगे, It speaks about our foundation. और ये हमारे नींव के बारे में और बुनियाद के बारे में बताती है। And thou, Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hand. लिखा है, और ये है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। The Bible says the Lord Jesus Christ laid the foundation. और लिखा है कि यीशु मसीह ने बुनियाद को डाली है। One of the great words in the whole book of Hebrew is found in verse number 8. और इब्रानियों के पूरे बाइबल में वचन 8 में वहां पर सबसे अद्भुत जो वचन है वो पाया गया है। Look at verse number 8 देखो यहाँ पर वचन 8 में, and ask this question. और ये प्रश्नों का पूछना। Always when you read the word of God, ask questions and learn. जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उस समय हमेशा प्रश्न को पूछना। Look at verse number 8, beautiful verse. और वचन 8 को देखिए, सब बहुत ही खूबसूरत है। But unto the Son he saith. परंतु पुत्र के विषय में वह कहता है। Who is saying? कौन कह रहा है? Father is saying to the Son. पिता अपने पुत्र से कह रहा है। But unto the Son he saith. परंतु पुत्र के विषय में कहता है, Thy throne, O God. हे परमेश्वर तेरे सिंहासन। The Father in heaven is calling the Son Jesus as O God. स्वर्गीय पिता क्या कह रहा है? यीशु मसीह को हे प्रभु कह के। God the Father is calling God the Son as O God. परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि हे परमेश्वर। This is a great verse that you can show to anybody who does not believe that Jesus Christ is God. और ये अद्भुत वचन है, जो कोई आप दिखा सकते हैं, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर के ये वचन को आप दिखा And सकते this हैं। same God is the one who laid the foundation of the creation. और वही जो परमेश्वर जो बुनियाद को डाली है इस समय That is the Lord Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। It says in the beginning has laid. और लिखा है कि आदि में उसने डाली है। And the Lord in the beginning has laid the foundation of the earth. और आदि में पृथ्वी की नींव को डाली है। And the heavens are the works of thine और hand. स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। So the Bible begins with the word in the beginning God created. तो बाइबल शुरुआत करती है कि आदि में परमेश्वर ने बनाया है। The Bible says in John chapter 1 he created by the word. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया है। And this word is God. और ये जो वचन है वो परमेश्वर है। And God, this word created everything. और जो वचन है सब कुछ बनाया है। And in Hebrews chapter 1 verse number 10 it says it is the Lord Jesus Christ who is the word that created everything. और इब्रानियों 1:10 में लिखा कि ये यीशु मसीह है जिन्होंने सब कुछ बनाया He है। laid the foundation. उसने बुनियाद को डाली है। He created the heavens and the earth उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है with his own hands. अपने हाथों के द्वारा। How wonderful is our God. कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। You see, God did not just take the stars and boom, he did not throw it. परमेश्वर ने केवल नहीं किया कि स्टार को लेकर फेंक दिया और हो In गया। fact, when you read the book of Psalm, जब आप भजन संगीत पढ़ेंगे, he says with his fingers he put the stars in their places. अपने उंगली के साथ उसने स्टार्स को उसने वहां पर रखा है। You see, when you wake up early in the morning at 5 o'clock, जब सुबह 5 बजे को जब उठते हैं, you get out of your house आप घर से बाहर जब निकलते हैं and looks towards this side, और इस और आप अगर देखेंगे तो towards the extreme east, south. अगर आप साउथ की ओर देखेंगे, Not south, extreme southeast. अगर आप साउथ ईस्ट के ओर देखेंगे तो, So you look this way और आप इस साइड में देखना and lift up your eyes. और अपने आंखों को उठाना, You will see polar stars. और आप देखेंगे ऐसे ऐसे बहुत अंधकार के तारे देखेंगे। You will see polar stars. पोलर स्टार्स।
So you will, polar stars means it looks like a rectangle ओके, वो चार कोना के जैसा आपको दिखेंगे and इस then समय, has a tail. और उसका पूंछ भी रहेगा। 365 days in a year you get up 365 दिन में जब आप उठेंगे and you look at it और आप हमेशा देखना, and you will see it right there only. और हमेशा वहां पर ही आप देखेंगे। You know what? Why? क्योंकि आपको पता है क्यों? Because God says with his fingers he laid those क्योंकि stars over there. क्योंकि लिखा है अपने उंगलियों के साथ परमेश्वर ने हर एक स्टार्स को वहां पर रखा है। You get up at 6 o'clock in the evening. और आप शाम के समय आप 6 बजे को उठना। No, don't sleep at 6 o'clock. नहीं, सुबह शाम को मत सोना। Lift up your eyes at 6 o'clock 6 बजे को अपने आंखों को उठाना and look at this side. और ये साइड में आप देखना। By the way, where is Venus? This way? I forgot. I'm confused because yesterday I saw one star that side. कल को मैंने उस साइड में एक स्टार को I देखा। love to see stars. मुझे बहुत ही पसंद है स्टार There देखने are के लिए। two bright stars that you will see. One this way, east, north, and you will see one on the west, और आप इसे south. ब्राइट स्टार को देखेंगे इस साइड में और पीछे तरफ में, And they are very bright. और उन लोग बहुत ही ब्राइट हैं। But every day they will be on the same place लेकिन हर दिन लोग वही जगह पे रहेंगे because God laid them over there. क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर उन लोग को रखा है। In the beginning, God created. आदि में परमेश्वर ने बनाया, This God created with the word. और ये जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया, This word is God. और ये वचन परमेश्वर है। And the Bible says this God is Jesus और ये Christ. बाइबल बताते कि ये जो वचन है वो परमेश्वर है। Turn to Colossians chapter 1 इस समय हम कुलुस्सियों के पत्री में हम इस समय खोलेंगे वचन 1 में, and look at verse number 18. अध्याय 1 वचन 18। And in verse number 18, और वचन 18 में the Bible says, बाइबल बताती है, and he is the head of the body. और लिखा है वही देह है। You see, now this is how I will read my और- message this morning. और आज के संदेश को मैं इसी प्रकार से पढ़ूंगा इस In समय। the beginning was the word. In the beginning, God created. और आदि में परमेश्वर ने बनाया है, He created by the word, उसने वचन के द्वारा बनाया है, and this word is God. और ये वचन परमेश्वर है, And this God is the one who laid the foundation. और ये जो परमेश्वर जिन्होंने बुनियाद को डाली है, And his name is Jesus. उसका नाम है यीशु। And then what I will read is, and he is the head of the body, the church. और वही देह है कलीसिया का, Who is the beginning? और जो आदि है, The firstborn from the dead. और मरे हुए में से जो उठने वाला, And that in all things he might have the preeminence. और मरे हुए में से जी उठने वाला में You know what the पहला। Bible says? आपको पता है बाइबल क्या कहती है? The Bible says Jesus Christ is the head of the body. और लिखा है वो कलीसिया का सिर है, देह है, Jesus Christ is the head of the church. और कलीसिया का वो सिर है। Church did not start with apostles. और जो कलीसिया और प्रेरितों के द्वारा शुरुआत नहीं हुई है। Some people say church started with Apostle Peter. और बहुत से लोग हैं कि पीटर के द्वारा कलीसिया शुरुआत हुई है। Some people say church started with Paul. और बहुत से लोग कहेंगे पौलुस के द्वारा शुरुआत हुई है, That is absolutely wrong. लेकिन वो गलत है। Look what my Bible says. देखो बाइबल क्या कहते हैं In यहाँ पर, verse number 18. वचन 18 में, And he, और वही, who he? वो कौन है? Is speaking about Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। Look at verse number 15. और वचन 15 में देखो क्या लिखा है। Bible is amazing. परमेश्वर का वचन बहुत ही In खूबसूरत verse है। number 15, the word of God says, वचन 15 में वचन लिखा है, who is the image of the invisible God, वो तो अदृश्य परमेश्वर का the firstborn of every creature. और सारे सृष्टि का पहली लोटा। Jesus is the visible form of the invisible God. और यीशु मसीह जो अदृश्य परमेश्वर का वो दृश्य रूप है, And that's what the definition of the soul is. और वही हमारा प्राण का एक डेफिनेशन है। What is a soul? प्राण क्या है? A soul is the invisible form of the visible body. और जो प्राण है, जो अदृश्य जो प्राण है, उसका हम दृश्य रूप है हमारा ये You शरीर। cannot see the soul, आप सोल को नहीं देख पाते हैं, but your soul looks exactly like you. लेकिन जो तुम्हारा जो प्राण है तुम्हारे जैसा दिखता है। Your soul has everything that you have in your body, और तुम्हारे प्राण में सब कुछ है जो आपके पास इस समय है, but your soul is invisible. लेकिन जो तुम्हारा जो प्राण है वो अदृश्य है, And soul is the Father, और जो प्राण है वो पिता है, and the body is the Son. और जो शरीर है वो यीशु मसीह है। And the Bible tells Jesus Christ is the visible form of the invisible और God. बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का वो दृश्य रूप Look है। at verse number 15. वचन 15 में देखो, Who is the image of the invisible God, लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप the firstborn of every creature. और सारे सृष्टि में पहली लोटा है। Now look at verse number 18. और वचन 18 में देखो, And he is the head of the body. और वही देह है, कलीसिया The का सिर है, church. कलीसिया का सिर है। Amen. आमीन। Jesus Christ is the beginning of the church. और यीशु मसीह कलीसिया का शुरुआत है। Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा मैं मेरी कलीसिया की स्थापना करूंगा। He said, I
उसने कहा कि मैं I means Jesus, मतलब यीशु मसीह will. मैं करूंगा। That means God's choice. इसका मतलब परमेश्वर का चॉइस है Build और मैं बनाऊंगा। His work. इसका वो काम है I will build my church. और मैं अपनी कलीसिया की स्थापित करूंगा। The church belongs to और Jesus. जो कलीसिया यीशु का है He is the one who laid the foundation. और उसने बुनियाद को डाली है। Today, the Lord Jesus Christ, Pastor Lordson is not the head of this church. और पास्टर लॉर्डसन इस कलीसिया का सिर नहीं है। Nobody is the head of the church. कोई भी कलीसिया का सिर नहीं है। The Lord Jesus is the head of our लेकिन church. यीशु मसीह हमारा कलीसिया का सिर है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the head of our church. यीशु मसीह हमारा कलीसिया का सिर है। The Bible says बाइबल बताती है that the church did not begin with Peter and Paul. और पतरस और पौलुस के द्वारा शुरुआत नहीं हुई कलीसिया का। Church did not begin with Tom and Jerry. और टॉम एंड जेरी के द्वारा शुरुआत नहीं हुई है। Church did not begin with pastor and sister. और पास्टर और सिस्टर के द्वारा कलीसिया शुरुआत नहीं The हुआ है। church began with the Lord Jesus और Christ. कलीसिया की शुरुआत यीशु मसीह के द्वारा हुई He है। is the head of the body, the church. और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर Look है at that. Who is the beginning? और वही आदि है The firstborn from the dead. और मरे हुए में से जी उठने वाला पहला लौटा है That in all things he might have the preeminence. कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। Dear friends, in your life, मेरे प्रिय आपके जीवन में, in your work, आपके काम में, in your business, आपके बिजनेस in में, your marriage, आपके शादी in your children, आपके बच्चों के जीवन in में, your आपके education, एजुकेशन में, Jesus Christ, यीशु मसीह the Word of God, जो वचन है should have an absolute preeminence in your आपके जीवन life. में सबसे प्रधान पहला स्थान होना चाहिए। Oh, dear friends, हे मेरे प्रियो, that's why we need to put the Word of God first in our lives. इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को हमें अपना जीवन में पहला स्थान देना है। And we come to the house of God because He is the head of the और हम church. परमेश्वर के भवन में आते हैं क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है We need to पut everything in perspective. और हमें सब कुछ ढंग से हमें सजाना है। And finally, और अंतिम में in 1 John chapter 2 verse 24. और पहला यूहन्ना में हम खोलेंगे इस समय This is the last scripture. और ये आखिरी वचन है। 1 John chapter 2 verse 24. पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 24 में हम देखेंगे। Look what the word of God says. देखो वचन में क्या लिखा है। Let that therefore abide in you, जो कुछ तुम में आरंभ से हुआ है, which ye have heard from the beginning. जो तूने आरंभ से सुना है, If that which ye have heard from the beginning वही तुम में बने रहे। जो आरंभ से तुम्हें सुना है shall remain in you, यही वो तुम में बने रहे, you also shall continue in the Son and in the तो Father. तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहेंगे। You may say, why the Spirit is not written over there? आप कहेंगे कि क्यों पवित्र आत्मा के बारे में नहीं लिखा गया Because है? the Spirit is the author of the book. क्योंकि जो पवित्र आत्मा यहाँ का लेखक है He is not absent in this verse. और वहाँ पर मौजूद ऐसा नहीं है। He is absolutely present because he is the author of the scripture. वहाँ पर वो प्रेजेंट है क्योंकि वही इस वचन का ऑथर है। And you know what the Holy Spirit is telling you आपको and पता me? है पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहे हैं? The Holy Spirit is telling you and me whatever you have heard from the beginning, पवित्र आत्मा कह रहा है जो कुछ भी तुमने शुरुआत से सुना है, whatever you studied from the Word of God, जो कुछ भी तूने वचन से अध्ययन किया है, what you read from the Word of God, जो कुछ भी तूने वचन से पढ़ा है, what you hear the Word of God being preached, जो कुछ भी तूने प्रचार से सुना है, whatever you understand, जो कुछ भी तुम समझा है, whatever you know. जो कुछ भी तुम्हें पता है। Sometime you may say, Pastor, but I don't understand many things. बहुत से समय आप कहेंगे मुझे सब कुछ पता नहीं होता है पास्टर जी। Don't worry if you don't understand. चिंतित होने की जरूरत नहीं अगर आप God समझते did नहीं तो। not say the just shall live by understanding. परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम समझने के द्वारा तुम जियो। God said the just shall live by faith. यीशु ने कहा कि तुम के धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Don't worry about the things that you don't understand. आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं जो आप समझते नहीं है, Worry about the things that you do understand. लेकिन आप चिंतित करो जो चीजों को आप समझते हैं And what you do understand, और जो आप समझते हैं that you should apply in your life. और वही तुम्हें अपने जीवन में तुम्हें अप्लाई करना है And that you should follow in your life. और वही तुम्हें फॉलो करना है। And when you do that, और जब उस चीजों को करते हैं God will give you more and more understanding परमेश्वर और भी तुम्हें ज्यादा समझ को देंगे and more light in your life. और भी ज्यादा चमक को आपके जीवन में So देंगे। this verse talks about discipleship. और ये जो वचन है एक डिसाइपलशिप के बारे में बताते What हैं। is discipleship? What is discipleship means? चेलों के बारे में वो क्या है? Obey and follow. इसका मतलब आज्ञा का पालन करो और अनुसरण करो। But Lord, I don't understand. आप कहेंगे मैं समझता नहीं प्रभु। You know what God says? क्या आपको पता है प्रभु क्या कहता Just है? follow me. केवल तुम अनुसरण करो। I'm leading you. मैं तुम्हें अगुवाई कर रहा हूँ। You know, in the Old Testament, when we read, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं वचन में, we read about the people in the wilderness walking, wandering. हम देखते हैं जंगल में बहुत सारे लोग भटकते हुए चल रहे थे उस And God समय। told them, follow me. और प्रभु ने कहा कि मेरी अनुसरण करो तुम लोग।
And God said, I'm going to come and present myself as a pillar of light in the night for you. और प्रभु ने कहा कि मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा एक पिलर जैसे, खंबा जैसा रात को, And you just follow me. और तुम मेरी अनुसरण करना उस समय। And God says, when I stop, प्रभु ने कहा कि जब मैं रुकूंगा you stop. तुम भी रुकना, When I move ahead, जब मैं आगे जाऊंगा you follow. तुम अनुसरण करना उस And God समय। said, follow me. और यीशु कह रहा है कि So, अनुसरण करो। Wherever the pillar of light went, जब जो लाइट का जो खंबा है जो गया, the people of Israel followed. और इजराइल के लोगों ने भी फॉलो किया उस When the समय। pillar of fire stopped, जब आग की जो खंबा जब रुका, they stopped. उन लोग भी रुक गए उस समय। And the pillar of light gave them brightness everywhere. और जो रोशनी का जो खंबा है चारों तरफ रोशनी को But दिया। then they say, but God, what about in the daytime? और कहेंगे कि दिन के समय में क्या है प्रभु? Oh, the sun is so hot. देखो सूरज बहुत ही गर्मी है। That's a good question. अच्छा प्रश्न है। I'm going to do something for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हूँ, I'm going to protect you from the heat of the sun. और मैं सूरज की रोशनी से तुम्हें बचाऊंगा, And I'm going to come as a cloud above you. और मैं एक बादल जैसा तुम्हारे ऊपर आऊंगा, And with my cloud, I will give you shadow. और उस बादल से मैं तुम्हें छांव को दूंगा। And when I move, जब मैं आगे बढ़ूंगा you move. तुम भी आगे बढ़ना, When I stop, जब मैं रुकूंगा you stop. तुम भी उस समय रुक जाना। It is simple, isn't it? ये बहुत ही सिंपल है। I won't be going like that. मैं ऐसा हिल के नहीं जाऊंगा, I will just go straight. लेकिन मैं सीधा जाऊंगा। When I go, जब मैं जाऊंगा you come. तुम भी आना। Wherever I lead you, जहां पर मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा you follow me. तुम बस फॉलो करना। Is that simple? क्या वो सिंपल है? And so what you understand, जो कुछ समझते हो तुम you obey. तुम ओबे करो, What you don't understand, जो तुम समझते नहीं don't worry. उस चिंतित मत करो। When you obey what you understand, जब तुम आज्ञा का पालन करते हो, जब तुम समझते हो, God will give you the light more as you move forward. परमेश्वर ने आपके जीवन में और भी ज्यादा रोशनी को This देगा। is what Jesus said. और वही यीशु ने कहा, Follow me. मेरी अनुसरण करो, Just follow me. बस मेरे पीछे हो जाओ तुम लोग। Don't worry about what you will eat or drink and all. और जो तुम खाओगे पियोगे उसके बारे में चिंतित मत करो। Obey my word. मेरी वचन का पालन करो। You remember this week was a big, what do you call, job bonanza, right? A big job festival. और एक ऐसा जॉब फेस्टिवल था ये हफ्ते में। Lot of our young people in our church are getting jobs. और बहुत से हमारे जवान यहाँ कर कलीसिया के लोगों को काम को मिला है। In fact, one person said not only one company, there are two other companies are calling, offering more salaries. और एक व्यक्ति ने कहा कि एक ही कंपनी से नहीं, लेकिन दो कंपनी से मुझे कॉल आ रहे हैं। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत है? God does incredible work when we are faithful to the Lord. परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को करते हैं जब हम विश्वास को रखते हैं। Do you know all the 66 names of the books of the Bible? क्या आपको पता है बाइबल के 66 किताब के नामों को? Pastor, I don't know. I really don't know. पास में मुझे पता नहीं But है, I know some of the names. लेकिन मैं कुछ नामों को मुझे पता है, And I'm obeying it fast. और मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। Very good. बहुत ही अच्छा बात है। What you know, just obey. जब जो आपको पता है वही तुम पालन करो। Don't break your head over the things that you don't understand. जो तुम समझते हो उसके बारे में तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं You'll है। mess around in your life. तुम्हारे जीवन में सब कुछ खराब हो जाएंगे। God will not put a sun absolutely right into your eyes and burn your eyes. परमेश्वर तुम्हारे आंखों के वहां पर रोशनी को नहीं डालेंगे और तुम्हारे आंख को जला देंगे, He gives you light, little, how much you need. लेकिन जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम्हें रोशनी को देगा। Amen. आमीन। Jesus said, follow me. यीशु ने कहा मेरे पीछे हो जाओ। Why should you and I follow Jesus? क्यों हमें यीशु मसीह के पीछे होना है? Because in the beginning, क्योंकि आदि में Jesus created the heaven and the earth. यीशु ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning, आदि में Jesus was with God. यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, God was with Jesus. और परमेश्वर यीशु के साथ था, Jesus is God. और यीशु परमेश्वर था। Because Jesus क्योंकि यीशु जो है laid the foundation संसार की बुनियाद को from the डाली beginning आदि से, of the heaven and the earth और स्वर्ग और पृथ्वी का with his hands. अपने हाथों से। Because Jesus क्योंकि यीशु है is the head और यीशु सिर है of the church, the body. कलीसिया की देह का, And he is the foundation of the church. और वही कलीसिया का बुनियाद है। And Jesus says, और यीशु कहता है from the beginning, आदि से ही what you heard, जो कुछ तूने सुना है obey तुम आज्ञा का पालन करो and follow. और तुम फॉलो करो। Amen. आमीन। This morning, आज के सुबह में we will make a decision. हम एक डिसीजन लेंगे। Oh God, हे प्रभु, I'm not too smart. मैं बहुत ही स्मार्ट नहीं I'm हूँ, not too wise. मैं बहुत ही ज्ञानी नहीं हूँ, I come to church. मैं कलीसिया को आता हूँ, I read my Bible मैं every बाइबल day. को हर दिन पढ़ता हूँ, I understand a little bit. मैं कुछ समझता हूँ,
Help me to obey that. मुझे आप मदद करो ताकि मैं पालन कर सकूं। Don't eat 25 kg of rice in one day. और एक दिन में 25 किलो राइस मत खाओ, You will die. आप मर जाओगे। One plate of rice or 2 plate of rice in the afternoon is sufficient. एक प्लेट या फिर 2 प्लेट ही बहुत ही सफिशिएंट है। In the night, 1 chapati, 2 chapati or little rice, sufficient. और रात को कुछ रोटी या फिर कुछ खाना आप sufficient। In the same manner, treat the word of God. उसी प्रकार से आप वचन से भी करिए। Amen. आमीन। Little every day. हर दिन कुछ कम। Every day take a little, what you understand, enjoy it and obey it. और हर दिन जितना आप समझते हैं आप लेकर आप खुशियां मनाओ। And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष And you will करेगा। prosper. और वो तुम्हें आशीष को And देगा। you will be like the tree that is planted by the rivers of water. और उस प्रकार से आप पौधा बन जाएंगे जहाँ पर वो नदी के किनारे में लगाया गया है। And God will make you fruitful. और प्रभु आपको फलवान बनाएगा। And He will give you good success, the Bible और says. तुम्हें अच्छा सक्सेस को देगा, बाइबल बताती है। You know, good success does not come by studying but by meditating. लेकिन ध्यान करने के द्वारा गुड सक्सेस हमारा जीवन में आता है। Today, too many people talk about study. बहुत से लोग कहेंगे अध्ययन करो कह के। There's only one time you are told to study. लेकिन एक ही समय आपको अध्ययन करने के लिए कहा गया है। There are many times you are told to read, love, and meditate. लेकिन बहुत से जगहों में कहा गया कि पढ़ो और ध्यान करो। And what you understand, if you will meditate. जो तुम समझते हो अगर तुम ध्यान करोगे। Joshua chapter 1 verse 9. जोशुआ अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है। If you meditate upon the word of God. अगर तुम परमेश्वर के वचन में ध्यान करोगे। Day and night. दिन और रात। You shall have good success. और तुम्हारे जीवन में सफलता आएंगे। And prosperous life. और तुम्हारे प्रॉस्पर आएंगे तुम्हारे जीवन में। I'll tell you one story and finish it और here. एक कहानी बता के मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। I went to do a brochure for our November 7th meeting. और कुछ वहाँ पर ब्रोशर को मैं बनाने के लिए वहाँ पर नवंबर को मैं गया वहाँ पर। नवंबर नहीं गया, नवंबर के बारे में बनाने के लिए। हाँ, नवंबर के बारे में बनाने के लिए मैं वहाँ पर So गया। I went to the designer. तो वहाँ पे मैं डिजाइनर के पास गया। And I told the designer, you know, I want you to put this point. Warm welcome. और मैंने कहा कि वहाँ पर एक ऐसा लिखना पड़ेगा तुम्हें वहाँ पर। Powerful preaching of God's और word. परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य वचन। Good music. और अच्छा म्यूजिक। And good success. और गुड सक्सेस। And transformed life. और ट्रांसफॉर्म लाइफ करके। She looked at me. और उसने मुझे देखा। She said, why good success? क्यों गुड सक्सेस? Success is success. सक्सेस मतलब सक्सेस होता है। I said, no madam, success is not success. मैंने कहा कि नहीं, सफलता नहीं होता है। You can be successful like Dawood Ibrahim. दाऊद इब्राहिम की तरह तुम सक्सेसफुल होंगे। Or you can be successful like Jesus Christ. और या फिर यीशु के जैसा सक्सेसफुल होंगे। And she looked at me. और वो मेरी तरफ देखकर कही। Says, yeah, that's right. और उसने कही कि हाँ वो सही है। Because both are success. क्योंकि दोनों सक्सेस है। But one has good success. लेकिन एक के पास अच्छा सक्सेस है। And God is telling you, I will give you good success. और यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें अच्छा सक्सेस को दूंगा। Christian life is easy. और मसीह जीवन बहुत ही सरल है। Don't trouble yourself. अपने आप को तुम ट्रबल मत करो। Love God. प्रभु को प्यार करो। Meditate His word. परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करो। And what you understand, जो कुछ तुम समझते हो obey it. बस पालन करो। Don't try to obey what you don't understand. You'll be in trouble. जो तुम समझते नहीं उसका पालन करने के लिए कोशिश मत करो। Shall we pray? आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, thank you for your word. आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। From the beginning, शुरुआत से ही you are there. आप हमारे साथ हैं। And even now, और आज भी you are there. आप हैं प्रभु। This word is you. और आपके वचन ये है पिता। Your आप हैं name is प्रभु। word. और आप वचन में हैं If पिता। we want to know you, O God, और अगर हम जानना चाहते हैं if पिता, we want to see you, O अगर God, हम आपको देखना चाहते हैं we पिता, need to read the word of God. हमें वचन को पढ़ना होगा प्रभु। Lord, help us to see you every day प्रभु through आप the word. मदद कर ताकि हम हर दिन आपको देख Help सकें। us to obey your word. आपके वचन को पालन करने के Help लिए us मदद to कर। understand your word. समझने के लिए मदद कर प्रभु। Help us to believe in your और word. विश्वास करने के लिए मदद And oh कर। God, we pray that you will bring good success in our life. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में अच्छा सफलता को लाइए। And help us, oh God, to give preeminence to your word and to you in our और life हमारा every जीवन day. में पिता आपको सर्वप्रधान देने के लिए मदद करता। Bless your children with good health. आपके बच्चों को एक साथ स्वस्थ के द्वारा आशीष करो। Prosper them, O उन Father. लोगों को प्रॉस्पर करो प्रभु। Protect them, O उन लोगों को Father. रक्षा करो प्रभु And जी। bless them in every areas of their उन life. लोगों के सारे जीवन में आप आशीष करो We पिता। give you all the glory and honor. सारा महिमा आपको देते हैं। We give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम And all God's people said, Amen. and again, Amen. and again, Amen. amen. Let's all stand.